नाइट सी हो गई है पर इवनिंग से ही. थैंक यू फॉर कमिंग. मैं और मेरा एक दोस्त एक बार बनारस का आज बहुत जिक्र हो रहा है, फिर बनारस आ गया. मैं और मेरा एक दोस्त बनारस गए थे एक स्क्रिप्ट लिखने. तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैं उसको वहाँ घुमा रहा था और मैं शाम को उसको बोटिंग कराने ले गया. तो बोट पर उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि ये फिल्म बनाते हैं. फिर हम लौट के बॉम्बे आए और कोशिश करते रहे कि वो फिल्म बनाएंगे. एक सवाल जो ज़्यादातर जगहों पे सुनने को मिला, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना, कि अक्सर मुझसे पूछा जाता था कि माधुरी, जूही और उस और में एक मेल हीरो का नाम पूछा जाता था और मैंने सबसे कहा कि भाई यही हीरो है और यही विलेन है. तो शौमिक सेन जिन्होंने इस कहानी को मुझे सुनाया था, जिन्होंने इस खूबसूरत फिल्म को बनाया, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म and the writer of the film, I would like to introduce him to you. Mr. Shomik Sen, please. Hi. Hello, hi. Good evening and thank you so much for all of you to come here. I see my actors here. Hey, Divya, Priyanka, Vinita, Tanishta. Thank you so much, the other actors of my film. And it's been an absolute pleasure working in Gulab Gang and to have finally made this film. But more than that, it's a huge pressure, obviously putting together two of the greatest icons that we've all, seen over the years. And had it not been for the support of the man standing on my right, I don't know what would have happened. I mean, there's obviously a reason why people are very skeptical when a first-time debutant director comes to make a film. Ki, Arey yaar, pata nahi kya bana. And then, of course, you have a pillar of strength like him next to you in all sorts of situations when there was varied skepticism about an all-women's action masala film with a no male actor. Can say no male actor, right? So yeah. And it would not have been possible without the kind of help that I've got across board with all my other actors who've been absolutely fantastic to work with. My crew, Sarojji, my team. I'd really like to mention Jiggy, wherever you are, man. My associate director. He's a brother that who I said on the first time that I met him is, "Are you vegetarian?" And he said no. That's the day that we bonded. And Sagar and Alphonse, I don't know if he's managed to reach, and John, who's been my co-collaborator and my music producer. I've done the music myself, which is another. People say, "Hey, director, music khud karta hai, acha." So anyway, pagal hai, Bengali hai. So all of that, and we've gone through all of that, and so today here we are, and really, really nice to hear, 25 lakh viewers in less than in like 7 days in a week, and but this is just the beginning, and we really need all the more support. It's not a traditional blockbuster, if I may call it that. So yeah, that's it. Thank you for coming. One minor detail, actually quite major, that I missed out. I didn't miss out actually, I kept it for a little later. When I heard that script in Banaras on that boat, I loved the script, but I wasn't too sure whether it was too wise to go ahead and make a film with an entire female cast. Sorry, ladies, but I did think like that. And then I requested Shomik to go meet my friend, another friend of mine, to seek an opinion. And he heard the script and he called me from the cafe that they met in, and he said, "Are you mad? How can you have second thoughts on this? This is a fantastic script." He is the associate producer of the film, Mushtaq Sheikh, my friend, my brother. Can I call him? Thank you. Good evening. Thank you for coming and making this occasion very special for us. It's a special film, and you'll have braved the cold wave to reach here. Without any delay, we've come here today for the release of the single Dhimi Dhimi. And who better than the one and only, the magician, Saroj Khan, to do the honors. Thank you, thank you, thank you. At least you recognize my name. Thank you very much for coming.
Especially here this evening, Madhuri ji and Juhi ji from Gulab Gang, the wonderful dancers. Let's hear it for them. They're all Saroj ji's students. Madhuri ji and Juhi ji, you're legends and never seen before avatars. बहुत उत्सुक थे हम आप दोनों को गुलाब गैंग में देखने के लिए. Thank you so much for being here this evening. Thank you, members of media, and may I please call upon stage the team Gulab Gang, Anubhav sir, Shamik da, and Mushtaq. Please, may I please call upon for chairs, क्योंकि इस फोटो ऑप के बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हैं Q&A सेशन होगा. कोलकाता के एक रहवासी की पहली फिल्म को सपोर्ट करने के लिए पहले तो आपको थैंक यू. लेकिन एन ऑल एंड आउट वुमेन सेंट्रिक फिल्म, अनुभव सर, डज इट मेक यू स्कैर्ड और गिव यू द शिवर्स कि शायद ये पिक्चर चलेगी कि नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में दिस इज अनसेट रूल, जब तक हीरो ना हो तब तक फिल्म कैसे चलेगी? हीरो भी है फिल्म में, विलेन भी है, तो दोनों में से किसी चीज़ की कमी नहीं थी. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, हाँ थोड़ा सा ऐसा, स्पेशली फॉर न्यू प्रोड्यूसर, मैं बहुत पुराना एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर नहीं था जब मैंने फिल्म शुरू की थी, अभी नहीं हूँ, तो हाँ थोड़ा सा भय था, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था मुझे शौमिक में, और शौमिक को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था अपनी स्क्रिप्ट में. मैं और मुश्ताक शायद कई सारी रातें हमने इस पर बिताई कि क्या करें, कैसे करें, कितना करें. एक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था कि कितनी बड़ी बनाएं इस फिल्म को. फिर हम अपने कन्विक्शन के साथ गए, और आज भगवान की दया से, आप सब लोगों के सहयोग से अच्छा सा लग रहा है. Questions to the media members here? Anyone has questions? हाय, माधुरी, जूही, आप दोनों से मेरा एक सवाल है. मेरा नाम आलोक है कि इस तरीके की अगर कोई गैंग फॉर्म करनी हो तो उस गैंग में आप किस किस को सम्मिलित करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से? आई थिंक सभी लड़कियों को, सभी औरतों को हम ज़रूर एडमिट करेंगे इस गैंग में, और अगर मेन भी आना चाहे तो दे मोस्ट वेलकम. जूही? अच्छा, माधुरी ने चॉइस तो कर दी है, तो वी विल टेक द वुमेन, एंड जस्ट फॉर डायरेक्शन आई स्टिल टेक सौमिक, कि वो बताएं हमें गैंग के साथ करना क्या है. ओके? फिल्म बन चुकी है और अभी रिलीज होने को भी तैयार है. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके के गैंग की अभी ज़रूरत है अपने भारत में, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है 2014-15 आने वाले सालों में? एक एक करके अगर आप बताना चाहें. I'll just say, like the film is set in a sort of rural background. And there really the message of this film is that if you can educate girls, empower them, then the need for violence and their abuse will be lessened. So I think that is the way forward perhaps, that you educate girls and you give them a good upbringing just like you do for the boys. Equality, gender equality. माधुरी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जूही जी से बिल्कुल सहमत हूँ. आई थिंक टुडे वी नीड एजुकेशन फॉर द वुमेन. दे शुड लर्न टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड वी शुड टीच द बॉयज़ टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स. वो भी एक एजुकेशन है जो करना पड़ेगा. जेंडर इक्वालिटी इज़ समथिंग वी रियली नीड टू वर्क ऑन. और ये स्टोरी ऐसे गैंग है, ये है वो है, लेकिन आई थिंक एजुकेशन इज़ द की. अनुभव, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत सारी स्टोरीज आती थी कि 90s में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ. अभी ये दोनों लोगों को आप साथ में लेकर के आए हैं. किस तरीके की केमिस्ट्री थी ऑन सेट, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो? हाँ, विजिट किया ना यार. और बहुत कमाल की केमिस्ट्री थी, और जितनी आसानी से, जितनी जल्दी, एक डेब्यूटेंट अगर फिल्म बना रहा हो और सेट पर केमिस्ट्री में परेशानी हो तो वो फिल्म में नज़र आती है. फिल्म बनने में वक्त लगता है, पैसे वैसों की बात नहीं करता मैं. तो इतने आराम से फिल्म बनी, शौमिक कितने कंफर्टेबल थे, एंड ये दोनों आइकॉन्स इतने अच्छे दोस्त आपस में
थे, मुझे अब ये किसी को पता नहीं था, शायद मुझे तो नहीं पता था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े से, खुशी से फिल्म बनी। सेट पर खुशी थी, पोस्ट प्रोडक्शन में खुशी थी, अब भी खुशी है। हेलो माधुरी जी, जूही जी, आप दोनों से सवाल है मेरा कि सेट पे इन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा माहौल रहा, आप बताएंगे कि कैसा रहा आप दोनों का एक साथ काम करने का एक्सपीरियंस? आपको प्रोड्यूसर साहब का भरोसा नहीं है? हम आपके मुँह से जाना चाहेंगे। अच्छा, नहीं, वही कहूँगी कि बहुत मज़ा आया जूही जी के साथ काम करके। इट वाज वंडरफुल, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ यू नो इट्स वन अपमैनशिप और एक दूसरे के साथ एक टशन है, लेकिन जब तक वो एक वार्मथ नहीं हो सेट पे, वो एक मुश्किल होता है आना। और इट वाज वंडरफुल, आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग विद हर एंड आई होप आई गेट टू वर्क विद हर अगेन। जूही जी, आप क्या बोलेंगे? चलो, माधुरी हैज़ बिन माई बेस्ट co-star. ठीक है? हाँ, that says it all. No, it was wonderful, and I think what I really liked was that just before we started shooting, one day Shamik brought both of us to the office, and you know, we were in a room sitting around, and he left the room, and there was only Madhuri and me there, and that's when I think the ice broke, and we kind of got chatting. क्योंकि इससे पहले हम दोनों रहे हैं, but we've never really interacted with each other. We've just pleasantries, hello, how are you, और उस पर ही रह गए थे. So we got to know each other that day, and I think the next day the shooting started, and I think that exercise really helped us get to know each other. And from then on, it was wonderful, really wonderful. जैसे आपने बताया कि सेट पे आपको काफ़ी मज़ा आया, आपने काफ़ी ब्रेक द आइस हो गया दोनों के बीच में, क्या आपको ऐसा मलाल हुआ दोनों को कि पहले क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ आपके दौर के टाइम पर? मलाल है आपको? मलाल है आपको? Actually, Shamik should answer this question. That, you know, we've always seen Madhuri, Joohi, and known they've been in the times but never worked with each other. And as a director who actually made that happen on screen, how was it for you to deal with that? And how was that experience? I mean, actually, honestly, you know, I was too in it to actually even understand the gravity of the situation. You know, I just wrote two characters and they fitted them to the T. And, you know, obviously they carry, you know, a legacy and they carry a huge body of work and they're superstars in their own rights. But this history, you know, the fact that, you know, a Saudagarish, you know, coming together, if I may use the term, I don't know, I didn't really, you know, I didn't understand the gravity of the situation then. But yeah, now when I see it, no, now when all of you ask these questions, I think, अरे हाँ यार, मतलब. माधुरी जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको मलाल है कि पहले क्यों नहीं काम किया एक साथ? अच्छा, मलाल, आप मलाल के पीछे पड़ गए? No, the first day they were together on set, we actually went because we knew that Madhuri and Joohi are going to come first time. We did reach there, that I can tell you. We reached there. मुझे लगता है हम दोनों से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स और जो को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो ज़्यादा घबराए हुए थे कि क्या होने वाला है सेट पे. लेकिन आई थिंक मलाल मतलब अभी नहीं हुआ. There is nothing we can do about that. But it's great that finally we did work together. So there's no regrets. लेकिन it's been wonderful. That's all I can say. माधुरी जी ठीक सामने आपके. क्या? कौन? माधुरी जी ठीक सामने. यहाँ. माधुरी जी मैंने ट्रेलर. आज तो लेडीज फर्स्ट है, लेडीज ओनली है. अच्छा नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पहले एक्चुअली एक आध मौका था कभी फिल्म करने का माधुरी के साथ, मगर उस वक्त मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि माधुरी थी फिल्म में. वो होगी तो मैं क्या करूँगी, कंपैरिजन होगी टू मच, नहीं, ये टेंशन मैं नहीं ले सकती. बट अब मैंने फिल्म इसलिए की क्योंकि माधुरी थी. I really did it because I said with this script, Madhuri doing it there, it'll be amazing when we work together. And I remember saying to her on that first day, Madhuri, we'll make it rock. And I think Madhuri, in a way, we have. Absolutely. माधुरी जी ठीक सामने आपके, यहाँ ठीक सामने यहाँ. माधुरी जी
मैं ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही फियरलेस दबंग लग रही थी आप। तो जब जब दबंग की बात होती है बॉलीवुड में तो एक ही नाम आता है, वो है सलमान खान। लेकिन लेडी दबंग की अगर मैं बात करूं तो क्या आप ऐसा मानती हैं कि बॉलीवुड की लेडी दबंग वो है माधुरी? वो लेडी दबंग पता तो नहीं, लेकिन लेकिन अगर फिल्म उससे उतना बिजनेस करे तो हाँ, बहुत मजा आ जाएगा। एक्चुअली 80% भी चलेगा, 80% भी चलेगा, 50% भी चलेगा। मिस्टर सेन, मिस्टर सेन मिस्टर सेन, पहली बार पहली फिल्म है आपकी और दो दिग्गज कलाकार आपके सामने हैं, तो नर्वसनेस थी या किस तरह का उस वक्त आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहला नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई नर्वसनेस नहीं। दोनों की क्वालिटीज बताइएगा। अच्छा, क्वालिटीज, हाँ क्वालिटीज मतलब किस तरह के क्वालिटीज, मतलब I'm just asking. हाँ जी। अच्छा, working style. No, they're both very extremely meticulous. They are, a treat to work with. Apart from the kind of lines and upon, the kind of dialogues that have been written, but they do add a lot more to what is written on paper. And I think that is what, as a director, you look forward to. Somebody who merely does not take the written word, but just takes it to another level, vis-a-vis mannerisms, vis-a-vis intonation. Of course, the fact remains that they both carry a legacy. As a lot of people have said, Juhi ji is playing a villain for the first time. So that's something which is advantageous for us, and all of you have loved it the way you have. Madhuri ji has sung in the film, she's danced in the film, she's done action like she's never done in the in any film. And for her to, lend her body, her soul to a script like this has, always been fantastic. माधुरी और जूही दोनों के लिए सवाल है, जब फिल्म बन रही थी तो असली गुलाब गैंग की जो है संपत पाल और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, तो क्या असली गुलाब गैंग से डर लगा फिर आपको? क्या फिर से प्लीज रिपीट। ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे हमारे को प्रोड्यूसर मुश्ताक जी, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, मेरा सवाल यही है कि जब फिल्म बन रही थी शुरुआत में तो असली गुलाब गैंग ने ढेर सारे सवाल उठाए थे और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, संपत पाल और सारे लोग थे, तो क्या असली गुलाब गैंग से आप लोगों को डर लगता है या कुछ और बाकी आगे की बातचीत कुछ हुई, आप लोग मिले उनसे? ये तो सब मुझे पता नहीं, वो गुलाबी गैंग है, हम गुलाब गैंग है। लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो संपत पाल जी और लक्ष्मी करके एक दूसरी बहुत सी ऐसी औरतें हैं इस इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं औरतों के लिए। और जो मेरा रोल है इस फिल्म में रज्जो, शी सिग्निफाइज ऑल दीज वुमेन, सो इट्स लाइक अ सल्यूट टू ऑल दीज वुमेन हु आर हेल्पिंग अदर वुमेन, और उसी का प्रतीक है रज्जो, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म। जूही जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, या सामने मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप काफ़ी बबली हैं लेकिन आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही है, एक नेगेटिव रोल में आप आ रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप हमेशा से पॉजिटिव वे में ही देखी गई हैं, गुलाब गैंग के साथ कैसा रहा आपका? क्या कहूँ, जब ये पहली बार मेरे घर आए, पहले तो इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि क्या कमाल का रोल है वो, तुम करो, हम लोग भेज रहे हैं, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, तुमको सुनाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो घर आए और सौमिक ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, कमाल के डायलॉग्स जो आपने थोड़े बहुत तो सुने यहाँ पे, ऐसे ही कुछ सीन्स, हर एक सीन मतलब ऐसा लगे क्या ऐसा हो गया, अरे फिर ऐसा, मगर बाय द एंड आई वाज लाइक आप लोगों की तबीयत तो ठीक है, मैं ऐसा रोल क्यों करूँगी? तो मैंने सोचा सच्ची कोई गलती हो गई है इन लोगों से, गलत एक्टर के घर पहुंच गए हैं, गलत स्टोरी सुना दी है मुझे। एट फर्स्ट आई वाज लाइक नो वे, आप लोग इसको सब चेंज कर दो, मेरा तो ये पीपल विल नॉट बिलीव मी इफ आई डू इट। मेरा ये डर था कि विल एनीबडी बिलीव कि आई कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, ये तो हो ही नहीं सकता। सो एक्चुअली इट वाज आफ्टर सम readings and then I was convinced, and then once I started really thinking about it and listening to him again and again, then I really started enjoying it, and then finally when I took it on I said हाँ कुछ अलग करने को
मज़ा आएगा. Let's try it out. And my main reason for taking it up was, one, I told you that Madhuri is going to be in it, and this casting would be very interesting. And the second was because his script, the script that they had brought was, it packed a lot of punch. माधुरी एंड जूही, मेरा आप दोनों से ही क्वेश्चन है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक लोगों के दिल में खिसक रहती है कि माधुरी बेटर है या जूही बेटर है, तो आप दोनों इसको कैसे लेती हैं कंपैरिजन? मैं तो थैंक यू, आई एम सो ग्लैड आई एम द विलन इन दिस फिल्म. तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों को. मेरे को ना नाचना था ना गाना था, वो सब माधुरी ने किया. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम जस्ट बीइंग मीन ऑन स्क्रीन. माधुरी जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? Well, I think comparisons are मतलब इसमें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोनों का रोल बहुत अलग है. What Juhi is doing in the film is not what I'm doing in the film. तो comparisons तो हो नहीं सकते, और अगर हुए भी तो it doesn't matter. Some people will like her, some people, as long as they love the film, I don't care, you know. माधुरी जी एंड जूही जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, आपने गीत भी गाया है फिल्म में, तो अगर अकेले या युगल स्वर में अगर 2 लाइनें हम लोगों को. अनप्लग्ड भी चले. अच्छा, यहाँ पे सलाह मशवरा हो रहा है, कह रहे हैं नहीं म्यूजिक लॉन्च पे गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे. एक लाइन तो एक्सक्लूसिव राइट नाउ. अनुभव जी, एक लाइन तो बनता है. मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोला. कौन रोक रहा है? वही तो हमने भी बोला कि मैंने ये बोला कि 24 को गाएंगे. 24 को फुल फ्लेज गाएंगे. एक लाइन अगर माधुरी जी. अच्छा, सवाल ही नहीं तुम्हारे पास गाने गवाने हैं. सर, सवाल तो हमने करने ही करने. अच्छा, पहले सवालों के जवाब दे देते हैं, बट एंड करेंगे गाने के साथ. डन, मैं गाऊंगा. वही एंड हो जाएगा. मैं गाऊंगा, हम लोग राष्ट्रगीत गाएंगे सब साथ में. सौमिक, आपके सामने है. हाँ जी सौमिक, आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो मतलब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हो रही है जी, वो एक आंदोलन के जरिए हो रही है, चुपचाप, बिना लाठी बिना डंडे के जी. इस फिल्म में जी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हिंसा के जरिए है थ्रू आउट. हाँ जी, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हाँ, डंडा उठा के है, मतलब पूरी तरह से. जी नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम से लड़ने के लिए आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, विच इज़ वाई देयर, मीन वट एवर द गैंग इज. मैं आपको कहानी बता नहीं सकता ज़्यादातर, बट दे गेट इन टू यू नो. बट आप जो बोल रहे हैं वो सही है, और इसका हमने you know, we've kind of kept that in the script, if I can say that much. और जूही जी, आपके सामने है अगेन, आपने इस किरदार का सुर कैसे पकड़ा, खासकर जो आप बोलती है कि घंटा समझते हैं आप. वो मॉड्यूलेशन और वो कन्विक्शन सौमिक का था या आपका था? वो जिस तरह, या फिर अनुभव सर का था? नहीं, I think I give a lot of credit to just Soumik, क्योंकि when I would hear him reading the script to me and the way he, क्योंकि उन्होंने लिखी है, so he was just, while maybe he didn't even realize it, but when he was reading the lines and the scenes, he was expressing them, and eventually when I finally agreed to do the film, all I wanted to do was just do it the way he was reading it, and I've really tried to do just that. So if it comes across well, all credit to him. माधुरी जी, आपने जो एक्शंस किए हैं, तो मतलब शूट के दौरान मतलब सारे स्टंट आपने खुद किए हैं या बॉडी डबल भी यूज हुए हैं? क्या क्या परेशानियां हुई उस दौरान? परेशानियां जी हाँ, छोटे वोटे कितनी आई? नहीं, बिल्कुल छोटे मोटे तो वो तो होता रहता है, हम डांस करें तभी भी चोटें लग जाती हैं, तो इतना कुछ नहीं है उसमें. बट आई एंजॉय डूइंग द एक्शन, दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत मज़ा आया एक्शन करके, और अगर आप एक्शन कहो तो इट्स लाइक कोरियोग्राफ्ड एक्शन, तो डांस की तरह ही होता है. और आई थिंक माई लिटिल ट्रेनिंग दैट आई हैड इन टाइक्वांडो, वो भी, उसने भी हेल्प किया मुझे टू डू दीज एक्शन सीक्वेंसेस एंड मेक इट लुक पावरफुल. तो ये सब पीछे था, एंड आई एंजॉयड इट. सो आई थिंक इट शोज काइंड ऑफ, यू नो, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग. And there's no stunt doubles for anyone in the movie. For anyone. All the stunts have been performed by the actors.
themselves. आज भी And not just me, all the other actors as well. आज भी They're काफी sitting ज़्यादा हो right गया है। here in the front row. The gang, they all have performed their own stunts. ज्यादा मुश्किल किसमें होती है, डांसिंग में या एक्शन मतलब सीक्वेंस को मतलब? मुश्किल नहीं, मुश्किल तो मतलब मुश्किल ये वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है. आई लाइक टू कॉन्कर. I like to conquer. If I think something is difficult, I like to conquer it. और वही और जब सामने वाला ऐसा हो जैसे मारने का मन करे तो फिर वो बिल्कुल अंदर से निकलता है जोश. माधुरी, हम इसे मतलब आपकी सबसे अच्छी मतलब कमबैक फिल्म कहें या फिर मतलब डे इश्क और गुलाब गैंग को हम मतलब पैरेलल मार्क्स मतलब दे सकते हैं? कमबैक का क्या मतलब हुआ? मतलब फिर से जो आई हैं. फिर से कितनी बार फिर से आऊँ? पूरी तबीयत से. I am coming back all the time. Anyways, हाँ बोलिए, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? तो मतलब डे इश्क और गुलाब गैंग अगर दोनों को मार्क्स देने हो तो मतलब आप किसे दें? मुझे लगता है these are two entirely different films. अगर आप बेगम का रोल देखेंगे तो बिल्कुल अलग है बेगम का कैरेक्टर, और अगर आप रज्जो को देखें तो बिल्कुल अलग है. तो मैं इसे मार्क्स कैसे दूं? You know, it's like saying आप आर्यन को ज्यादा मार्क्स देंगे या रायन को. मेरे लिए दोनों ही they are my babies. So for me it's very difficult. अनुभव सर, होली को इतना हिंसक क्यों मना रहे हैं? इस होली गुलाल नहीं लहू बहेगा. मैं होली को हिंसक बोल दूंगा तो होली हिंसक हो जाएगी. इतनी ताकत आ गई मेरे पास. इस पिक्चर में होली हिंसक है और ये पिक्चर ऐसा कह रही है. इतनी छोटी सी बात है. इस होली सबसे पहले लिखा है उसमें डबल एस है कि ओनली दिस होली. जैसे इफ मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होता है आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ. सो ये आई डबल एस है. सिर्फ और सिर्फ इस होली गुलाल नहीं लहू बहेगा. और माधुरी जी, मतलब इस फिल्म में जैसे कि मतलब सिस्टम से जुड़ने की बात कही गई है, आगे चलकर मतलब इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिले कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है या आम आदमी पार्टी को ज्वाइन, आगे चलकर कभी राजनीति में मतलब कदम रखने का दिल हुआ, मतलब दिल आपका कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. राजनीति में मुझे नहीं जाना है अभी. अभी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन that is one thing where I don't think I'll ever be in politics. Any more questions from that side of? Hi. Unfortunately, okay. दो जन कुछ कह रहे हैं. नहीं, मुझे फिल्म में करने का बड़ा मजा आया, but I think that's it. Thank you. Hi. Right at the back. Hello. Okay, that's fine. Unfortunately, today Suchitra Sen passed away. She was an iconic actress, very beautiful lady. What would you have to say about it? This is for, I mean, we can all answer this. This is for both the ladies, actually all of you. Well, of course, Suchitra ji was a fabulous actress, a beautiful, beautiful woman. और उनकी फिल्में जो थी बहुत ही what an actress. I mean, what can I say about her? She was a brilliant actress. And her passing away, of course, is a loss for our industry, and we will always remember her. Yeah, Suchitra Sen, I mean, I'm Bengali, probably I'm more in touch with her body of work. She single-handedly upheld an industry alongside Uttam Kumar, and perhaps is the most successful romantic pair ever in the history of this country. And they held it up for close to two decades, if I'm not mistaken. She just one fine day, went away from public glare, and we don't know what she looked like for most of the last 2 decades of her life. All I would like to say is तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं. Andhi is what we'll all probably remember her by, but it's an irreparable loss. It's one of the greatest actresses this country has ever seen. Juhi ma'am? Actually, I guess I just didn't read it this morning. I didn't realize, because till yesterday I had been following the news and it said that she wasn't well and critical. And I'm sad to hear that. And the film that I remember her most with is Andhi.
and a beautiful actress, a beautiful woman. May her soul rest in peace. जूही जी आपसे पूछना चाहूँगा, इट्स ओके अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा अगर आवाज़ सुनाई दे रही है। और मैं आप माधुरी जी से उम्मीद करना चाहूँगा कि मेरे सवाल को पॉजिटिव नोट पे ले। प्रोमो को काफ़ी पसंद करा जा रहा है, दोनों के जिस तरह की डायलॉग बाजी है उसको काफ़ी सराहा जा रहा है। जूही जी, आपने नेगेटिव किरदार, अगर आप जो नेगेटिव किरदार आप निभा रही हैं, आप ये मानती हैं कि आपने सही, आपको रोल आप तक पहुंच गया है? क्योंकि एक ट्रेंड रहा है कि नेगेटिव किरदार को ज्यादा अप्रिशिएट करा जाता है। आपकी फिल्म डर की बात ले ली जाए तो वहां शाहरुख को बहुत पसंद करा गया था। माधुरी जी, आपकी फिल्म अंजाम की बात कर ली जाए तो वहां आपके नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव दोनों शेड थे उसमें, लेकिन नेगेटिव किरदार को ज्यादा पसंद करा गया है। तो जूही, आप मानती हैं कि आपने जो बढ़िया रोल था वो आपने हासिल कर लिया है, माधुरी जी को उतना अच्छा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? अगर हीरो नहीं होगा तो विलन क्या करेगा, और विलन होगा तो हीरो क्या करेगा? आई मीन, वन विदाउट द अदर आई थिंक इज इनकम्प्लीट. एंड ऑनेस्टली आई ओनली डिड द रोल बिकॉज दैट वाज ऑल दैट वाज ऑफर्ड टू मी. उन्होंने माधुरी का रोल तो मुझे ऑफर ही नहीं किया. तो अच्छा ठीक है, थैंक यू, दैट मेक्स मी फील बेटर. जी, आप मानते हैं कि नेगेटिव किरदार को ज्यादा पसंद करती हैं ऑडियंस? Do you agree with this? Negative is more appreciated by the audience as compared to the positive one. I'm glad it's being appreciated today. जब शुरुआत की थी ना तो मुझे डर था कोई मेरी बात मतलब लोग मानेंगे भी कि नहीं, या हंसने लगेंगे कि ये क्या डायलॉग बोल रही है, ऐसा तो होता ही नहीं है. So I'm really glad that I'm being accepted as a villain today. बाकी कुछ होना, मुझे तुम्हारे अंदर नेगेटिव जरासीम दिख रहे हैं. वो सर, वो आपकी जाती राय है. माधुरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपनी फिल्म का एक डायलॉग आपसे कहूंगी. आपने बैट्समैन का नाम सुना है? जोकर का नाम सुना है? अगर जोकर नहीं होगा तो बैट्समैन क्या करेगा? घर बैठ के आता गूंदेगा. तो वही हिसाब है. देयर इज अ नेगेटिव एंड देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी. तो हमेशा दो एनर्जीज होते हैं तब फिल्म बनती है. तो ये दो एनर्जीज मुझे लगता है दे हैव गॉट द बेस्ट एनर्जीज फॉर दिस स्क्रिप्ट. और that's what makes the film happen. Congratulations to all of you. Here, Lipika here. Congratulations to all of you, and especially to Juhi and Madhuri for the power-packed, electrifying performances. And what is your take on women-oriented subjects, And hereafter, will you both try to opt only for women-oriented subjects? And are you both set to dethrone the Khans at the box office? आपका लास्ट वाला जो वो लाइन है ना, भगवान करे ऐसे ही कुछ हो जाए. Yeah, I want it. So can I have क्यों सेटल कर जाए? Can we have your comment on both the questions? का मत जाए. Because women-oriented subjects are rarely made, and since it's coming back with both of you, and you have both done wonderfully, exuberantly performed on the screen. So what is your take on the first question, and then? Well, मैं कहूँगी कि I like what Shaumik says always. इस फिल्म में हम ये नहीं कहना चाह रहे विमेन ओरिएंटेड फिल्म है. लोगों ने भूल जाना चाहिए कि दो औरतें हैं जो काम कर रहे हैं. दे शुड गो विद द स्क्रिप्ट, दे शुड गो विद द स्टोरी, और उन्हें मजा आना चाहिए. वी शुड एंटरटेन, वी शुड मेक देम फील एंग्री, वी शुड मेक देम फील सैड, वी शुड मेक देम फील हैप्पी, tickled, tickle their funny bone, and we should entertain them. I mean, that's what this movie is for. Or it just happens that these are two women who are working in the movie. What do you have to say, Juhi? And while we do all of that, we also give them a message, which is there in the film. So it's about empowerment, it's about the girl child, it's about education. So I think what she said was beautiful. I'd like to stay with that. So there should be and giving credit to both them, Definitely. all the ones who've seen the promo, and the amazing feedback that we have got. One of the most best compliment I think we all have received is that when you see the promo, you don't miss the hero. And that's exactly, the positive of Juhi and Madhuri coming on in one frame and giving Gulab Gang its essence. Juhi, so there should be no gender biasism, right? A hero can be a woman also. What do you have to say? That's what it is in our film. We've got Madhuri. तो हमें शाहरुख खान की जरूरत नहीं थी.
So finally, are you both set to dethrone the Khans at the box office? ये अगली हेडलाइन We हो want जाएगी your answer. और वहां से फोन आएगा. What are you all talking about? No, please, because it's a women-oriented film and you have really performed very well, very well. Yeah, but if I may take your question on, you see, you've already put the men on a throne. Let's dethrone them. No. But you've put them on a throne. That's nobody's throne. There is no throne. Okay, there is no throne. We've actually just made a normal masala blockbuster film. Normally क्या होता है आप जब two guys के film करते हैं, hero and villain and all of that, the women play girlfriends, mother, sister, है कि नहीं? हमारे यहाँ exactly opposite है. Women are playing hero villain, लड़के हैं, they are also playing brother, son, father, uncle. फिल्म हम वही बना रहे हैं. वही मैं कह रही हूँ. हाँ जी सर. जूही जी, मेरा अभी कुछ एक घंटे पहले एक आर्टिकल पढ़ा मैंने कि आप ऐसा मानती हैं, आप ऐसा सोचती हैं कि माधुरी जी के साथ में आई थिंक ये आपकी लास्ट फिल्म होगी. तो ऐसा क्यों सोचती हैं आप और ऐसा क्यों मानती हैं? बिकॉज ब्यूटीफुल भी हैं, फिट भी हैं, तो आई थिंक 10-20 फिल्में और कर सकती हैं आप दोनों साथ में. तो ये लास्ट फिल्म क्यों? नहीं, मैंने शायद ऐसा कहा कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म क्योंकि ऐसी कमाल की स्क्रिप्ट हमारे पास आए जहाँ पर माधुरी अपना रोल करे, मैं अपना रोल करूँ और दोनों जम के एक कमाल की फिल्म बना दें. ऐसा तो मौका हर रोज़ नहीं आएगा. सो मे बी आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखिए. I have a question to butt in before anybody else. I believe somebody at the back over there wants to ask a question. Please, could you pass on the mic there? Madhuri ji, आपने कहा है Rod is God. I love that line. I want you to say it once and ask you कि आपको कब ऐसे गुस्सा लगता है और रॉड उठाने का मन करता है रियल लाइफ में? बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं. अभी हर मौका मैं काउंट करने लगूं तो मतलब लाठी लेके यहाँ बैठना पड़ेगा मुझे. लेकिन या होता है ऐसे कभी कभी. रॉड इज गॉड में बिलीव करना पड़ता है कभी कभी, और नॉट एग्जैक्टली अ रॉड, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं. कभी कभी यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, और वहीं पे आप खुद रॉड हैं और आप स्ट्रॉन्ग हैं. सो आई थिंक यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड समटाइम्स. Question to Juhi. Before this, didn't you realize that there's a villain hidden inside you and you could have exploited this earlier? नहीं. I didn't realize I could be so good at being bad. ये मेरा डेब्यू है विलनी में, and I'm hoping that it will go down very well. नहीं, इससे पहले मेरे पास ऐसा कोई रोल नहीं आया, and I really thought कि पता नहीं इनको क्या हो गया है कि ये लोग ऐसा रोल मेरे पास लेकर आए हैं. एक बात मैं जरूर कहूंगी ऑन दैट. क्या हो गया? जूही, वन थिंग आई से कि विलन इतना स्वीटली विलनी कर सकता है, ये मैंने पहली बार देखा है. ये पहली बार आप एक ऐसा विलन देखेंगे जो बिल्कुल बहुत स्वीटली बात करता है और कहता है इसे खत्म कर दो, you know, something like that. So it's like, oh my God, you know, it's more scary than someone who's like, हाँ इसे खत्म कर दो, you know. So she plays a very, very different kind of a role. I don't want to give away too much, लेकिन yes, it was fun watching her, absolutely. Sorry. अच्छा, love interest and all that. Love interest not important है. Why should there be a man opposite a successful woman? जरूरत नहीं है. So it's about two women who are successful in their respective fields, and you know, so that's why it's not important to the story, to my story. I'm sure it's, you know, important to. I think बनारस से जो स्पेशल कुक्स आए हैं आपके लिए लजीज खाना बनाए एक बैठे हैं. आखिरी गीत वाली बात कही थी अनुभव जी आपने. जी नहीं बेसिकली 24 को आप बनारस में रहेंगे तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आज एक आगाज कर दें. अरे रुक जाओ, सुना गाने से पहले एक और बात कहनी है. एक बहुत ज़रूरी कुछ छोटी छोटी सी बातें करनी है. मुझे बहुत सारा आप लोगों ने भी क्रेडिट दिया, लोग देते रहते हैं कि महिलाओं की फिल्म में हाथ बटाया, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ. तो इतने ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपने चूँकि अगर इस बात को अप्रिशिएट किया है तो कुछ नाम जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया उनको अप्रिशिएट करेंगे. मेरे राजकोट से एक मित्र हैं श्री जानिश अजमेरा, उन्होंने मेरी मदद की. भरत शाह साहब ने मेरी मदद की है फिल्म बनाने में. एंड at the end of it all,
हाउ कैन आई नॉट मेंशन सहारा, जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया, ये सारा कुछ Sahara Movie Studios, the whole team of Sahara, and I'm really thankful to them. And Arun, you and your team has done a fabulous job today, fabulous job today. और इस फिल्म को बनाने में बहुत सारे लोग, मैं सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो आप थोड़े, शायद आपके लिए उतनी पर्सनल बात नहीं जितनी मेरे लिए, लेकिन मैं जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैं उनको यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद द लेडीज हियर, एंड प्लीज कम ऑन स्टेज. And Alphonse, the DOP, Archana, and Jiggy, Sagar, Team Banaras, please come on stage. I just want to introduce all of them to you, and I want to thank them for being here. Arun, please come here. And anybody who's from Sahara, please, Sahara team, come here. Please come, please, Manish. It is, hi. It's always very tough to put together a wonderful team, and here they are. Ishan, Dubey ji, please come fast. इनको इतना प्यार नहीं है आपसे इतना मुझको है. जल्दी आइए. जिगी काम. और अब हम लोग हाँ नहीं बस फोटो नहीं खींचेंगे हम लोग, बस सब साथ में ये दिखाना चाहते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. वाकई ये झूठ नहीं बोल रही थी. अरे थैंक यू अर्चना फॉर बीइंग सो नाइस एंड सो पेशेंट. एंड वो झूठ नहीं बोल रही थी, खाना एक्चुअली बनारस से आया है. कुछ एकदम नई चीज़ें खाने को मिलेंगी, और मैंने पहले कुछ गिनी पिग्स के ऊपर ट्राई की हुई हैं, सब जिंदा बच गए थे. यास्मीन तुम क्यों नहीं आई? भाग के आओ जल्दी. यास्मीन हैज़ डन मेकअप फॉर ऑल ऑफ देम. So thank you for coming, and please I hope you enjoy the dinner, and I hope you enjoyed my beautiful company, our beautiful company. No, that was meant to be a joke. सर आई थिंक मैं रेडियो जॉकी बनने का काम कर देती हूँ. धीमी जो आज आपने विटनेस किया, ये आज मिडनाइट को यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. बट लेट मी क्विकली टेक द वंडरफुल पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सॉन्ग. लिरिक्स नेहा सराफ ने लिखे हैं, खुद शौमिक दा ने एक्चुअली म्यूजिक दिया है फिल्म का. कौशिकी चक्रवर्ती फर्स्ट टाइम एवर क्लासिकल सिंगर हैं, पहली बार एक फिल्म के लिए वो गा रही हैं. एंड मालविका ब्रह्मा is also a part of this song. So please catch it on YouTube tonight. And Saroji! Oh my God! Oh! आपको बीच में आना है, जल्दी आ जाइए. Gulab Gang, thank you so much. One last time for Saroj ji for being here physically. It's not easy to choreograph so many girls together and be here this evening. Thank you, Madhuri ji. Thank you, Juhi ji. Thank you, Team Gulab Gang.